Hello everyone. Today we start framing algebraic expression. Welcome in ICSE Insights. We start framing algebraic expression. Expressing a given statement in terms of some variables in the form of an algebraic expression is called framing of an algebraic expression. An algebraic expression is an expression built up from constant variables and basic algebraic operations. Algebraic operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. ठीक है, etc मीन्स स्क्वायर्स क्यूब etc. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डिराइव्ड लाइक स्टेटमेंट इज दैट इट्स लेंथ इनटू इट्स ब्रेथ. ठीक है, वी हम यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल की. तो ये एक रेक्टेंगल की लेंथ है. ये इट इज़ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट इज़ अ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. तो स्टेटमेंट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ. ओके, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फाइंड करेंगे तो उसमें हम लेंथ को एल से डिनोट करेंगे एंड ब्रेथ को बी से. सो द फॉर्मूला इज डिराइव्ड हियर एल इंटू बी. ओके, नेक्स्ट वी टुक total area of cuboid. Total area of cuboid is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. Okay, so here we take length. L is a length, B is a breadth, and H is a height. Okay, we we put simply length, breadth, height as a simply form, and we create a formula of total area of cuboid. Total area of cuboid is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. Okay, so like this we derived all the questions, their formula and all. Question number 1. Perimeter of a rectangle is 2 times the sum of its perimeter of rectangle is equal to 2 times the sum of its length and breadth. So 2 times means 2 into sum of its length and breadth. The sum of length and breadth. It is the solution of the first question. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Perimeter of a square is 4 times its sides. The perimeter of a square is 4 times of its sides. So we write here perimeter of square is equal to 4 times of its sides. So 4 into sides. Okay, we draw here a square. Okay, we take A is the measurement of its sides, so we can write is 4 into A, that is 4A. Okay, area of a square is the square of its sides. Area of a square is the square of its sides. Square of to area of a square as q. Area of a square is square of its sides. तो square of its sides, तो फिर हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. और अगर इसकी साइड्स ए है, ठीक है, अगर इसकी साइड्स को हम ए लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड्स. अगर हम साइड्स की जगह ए को रखेंगे तो यहाँ पे ए और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ. The surface area of a cube is 6 times the surface of its edge. The surface area of cube is equal to
6 टाइम्स मीन 6 मल्टीप्लाई बाई द स्क्वायर ऑफ इट्स एज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एज जो है उसकी अगर मेज़रमेंट हम ए लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं टू का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ x एंड y माइनस m। तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, द सम ऑफ x एंड y माइनस m। द सम ऑफ x एंड y, द सम ऑफ x एंड y, x प्लस y माइनस m, simple. Second one, the product of x and y divided by m. The product of x and y, the product means multiply product। हम यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो हम इसमें जो प्रोडक्ट होता है मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को शो नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई एम, तो इसे हम फर्दर लिखेंगे एक्स वाई डिवाइडेड बाई एम। ओके, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द नेक्स्ट वे ऑफ राइटिंग इज एक्स वाई अपॉन एम, दैट इज फर्दर रिटन एज एक्स वाई अपॉन एम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ओके, फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 का थर्ड, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5m फ्रॉम 3n and then adding 9p to it। ओके, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5m फ्रॉम 3n, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5m फ्रॉम 3n and then adding 9p to it। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन ऑफ 5m फ्रॉम 3n, तो हम लिखेंगे 3n माइनस 5m एंड देन एडिंग 9p टू इट। ओके, देन एडिंग 9p to it, तो प्लस 9p, सिंपल। द प्रोडक्ट ऑफ 12x y and z माइनस द प्रोडक्ट ऑफ 5m and n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ product of 12 x and y and z is equal to 12 into x into y into z is equal to 12x y z, and product of 5 comma m and n is equal to 5 into m into n is equal to 5mn। okay, and then the product of 12xyz and the product is minus the product of 5m and n। okay, the last is 12xyz minus 5mn। sum of p and 2 are minus 5 minus sum of a and 3n plus 4x। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम ऑफ पी एन टू एक्स देखेंगे। द सम ऑफ पी एन टू एक्स, सम ऑफ पी एंड टू आर माइनस फाइव, तो टू आर माइनस फाइव माइनस माइनस sum of a and 3n plus 4x, the sum of a sum of a and 3n plus 4x। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते थे, द प्रोडक्ट ऑफ 12xyz माइनस द प्रोडक्ट ऑफ 5m and n। तो हम उसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे इस तरीके से कि प्रोडक्ट ऑफ 12xy&z बोला गया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 12xyz माइनस द प्रोडक्ट ऑफ 5m&n, तो 5mn। ओके, इस तरीके से भी हम उस ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आगे जो W of a man whose basic wage is ₹B 40 hours a week plus overtime at ₹R per hour if he works a total of T hours। ठीक है, तो एक आदमी है जिसकी टोटल वेजेस W रुपीज़ हैं, ठीक है, उस बेसिक वेज, उसकी जो बेसिक सैलरी है, मजदूरी है, वो ₹B है, ठीक है, 40 आवर्स टी टाइम के लिए, ठीक है, एक वीक में, प्लस ओवर टाइम, वो ओवर टाइम भी करता है जिसको उसे मिलते हैं ₹R पर आवर। ठीक है, इफ़ ही वर्क अ टोटल ऑफ T आवर्स, ठीक है, यदि वो आदमी पूरे T घंटे काम करता है, ठीक है, T घंटे काम करता है और जो कैपिटल T आवर्स काम करता है, तो हमें यहाँ पे निकालनी है उसकी टोटल वेजेस, टोटल मजदूरी उसकी कितनी है। तो हम यहाँ देखेंगे वेजेस फॉर T आवर्स इज ₹B, ओके, एंड ओवर टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T माइनस स्मॉल t आवर्स है। तो कैपिटल T माइनस स्मॉल t हम इसलिए करेंगे कि टोटल उसने T घंटे काम किए हैं पूरे अपने ड्यूरेशन में, वर्किंग ड्यूरेशन में उसने पूरे T आवर्स काम किए हैं टोटल, और जो स्मॉल t टाइम्स है वो उसकी बेसिक टाइम है, मतलब वो नॉर्मल टाइम करता है, और ये टोटल जो टी टाइम है ये पूरा ओवर टाइम और नॉर्मल ड्यूटी को मिक्स करके है। सो ओवर टाइम को हम माइनस करेंगे टोटल टाइम कैपिटल T माइनस स्मॉल t, तो ओवर टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T माइनस स्मॉल t। ओके, तो वेजेस फॉर ओवर टाइम, तो वेजेस फॉर ओवर टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेजेस फॉर, अब ओवर टाइम उसने कितने देर तक ओवर टाइम किया है उसको हमने कैपिटल T माइनस टी से फाइंड कर लिया, कैपिटल T माइनस स्मॉल t आवर्स, एंड वेजेस फॉर ओवर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वेजेस फॉर पर आवर फॉर ओवर टाइम, तो आर रुपीज़ उसको मिलते हैं पर आवर ओवर टाइम के लिए, और उसका टाइम है T माइनस टी, तो वेजेस फॉर ओवर टाइम इज इक्वल टू आर इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t इन ब्रैकेट, एंड देन टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस हो जाएंगे हमारे, टोटल वेजेस इक्वल टू वेजेस फॉर T आवर्स। तो हम यहाँ पे जो नॉर्मल उसकी टाइमिंग है, नॉर्मल वेज मजदूरी जो है पर्सन की, उसको फाइंड करेंगे, वेजेस फॉर T आवर्स, T आवर्स प्लस वेजेस फॉर ओवर टाइम, वेजेस फॉर ओवर टाइम ऑफ T माइनस T आवर्स। जो हमने यहाँ पे T माइनस T आवर्स है, ये वो हमारा ओवर टाइम है, तो T माइनस T आवर्स के लिए उसने कितने पैसे कमाए वो, ओके। तो इसको हम लिखेंगे टोटल वेजेस ₹W, टोटल वेजेस को हम W से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ₹W इक्वल टू वेजेस फॉर T आवर्स, तो T आवर्स जो उसने काम किया है उस पर्सन ने, उसको मिले हैं ₹B प्लस और वेजेस फॉर ओवर टाइम, तो वेजेस फॉर ओवर टाइम हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, तो ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ₹R इंटू T माइनस टी इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
from the from the formula b is equal to 2a square minus b square. Calculate the value of b when a is equal to 3 and b is equal to -1. ओके, जहाँ हमें यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू b की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के लिए b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहाँ हमें a की वैल्यू दी गई है 3 एंड b की वैल्यू दी गई है -1। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले को बाहर यहाँ पे फिर से नोट डाउन कर लेंगे, b इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन हम a एंड 3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर है, ओके, 2a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3a मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू हमें -1 दी है, तो हम b की वैल्यू यहाँ पर b स्क्वायर, b की जगह -1 और उसका स्क्वायर। फिर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर, जब भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है, लाइक यहाँ पे दिया गया है 3 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 3 3 ज़ा 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर माइनस और यहाँ ब्रैकेट में a का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में a का -1 का स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 दैट इज़ माइनस इंटू माइनस +1। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर +1 फिर तो 2 9 ज़ा 18, नेक्स्ट स्टेप 2 9 ज़ा 18 एंड ये ब्रैकेट के अंदर +1 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर -1 है। ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट ब्रेक होगा, माइनस प्लस के साथ मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, माइनस ब्रैकेट में अंदर +1 से मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 18 - 1 इक्वल टू 17 इज अवर आंसर। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द वेजेस ऑफ ₹W ऑफ अ मैन अर्निंग ₹W of a man earning ₹X per hour for T hours are given by the formula W इक्वल टू XT। यहाँ पे वेजेस है, जैसे उसने कितनी अर्निंग की है, उसकी मजदूरी क्या है, उसने कितना कमाया, वेजेस क्या है, तो वेजेस इक्वल टू उसने कितने देर तक काम किया वो, तो पर आवर एक्स कितने रुपीज़ मिल रहे हैं उसे 1 घंटे काम करने, तो X रुपीज़ पर आवर, और उसने कितने देर तक काम किया, तो उसने T आवर्स तक काम किया, तो 1 घंटे को उसे मिल रहे हैं X रुपये, और उसने T घंटे तक काम किए हैं, T टाइम तक काम किया है, तो वेजेस W इक्वल टू X इंटू T। तो फाइंड इज वेजेस फॉर वर्किंग 40 आवर्स, तो हमें यहाँ पे टाइमिंग दी गई है 40 आवर्स एट अ रेट ऑफ 39.45 रुपीज़ पर आवर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस W इक्वल टू X इंटू T, XT मीन्स X इंटू T। ओके, तो हम यहाँ पर x और t की वैल्यू रखेंगे और सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो वर्किंग 40 आवर्स, ओके, वर्किंग 40 आवर्स, तो हम यहाँ पर x जो है हमें वेजेस है, तो x हम लिखेंगे यहाँ पर रुपीज़ 39.45, ओके, एंड वर्किंग 40 आवर्स। ओके, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 0, ये 0 सिंपली में यहाँ लिख लेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 ऐड करेंगे तो 18 8 1 कैरी, 4 9 ज़ा 36 एंड 1 37 7 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 12 3 15, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, 1 2 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो हम यहाँ से 1 2 काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लिख सकते हैं। तो आंसर इज ₹1578.00, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ₹1578। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। एंड अब हम
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, the temperature in Fahrenheit scale is represented by F and the temperature in Celsius scale is represented by C. If F is equal to 9 by 5 into C plus 32, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक्सप्रेशन दिया गया है, फाइंड F। ठीक है, F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है व्हेन C इज़ 40। C मीन सेल्सियस, सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ F। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू 9/5 और हम यहाँ पे C की वैल्यू जो 40 दी गई है उसे हम यहाँ पुट करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ओके, अब इसको हम यहाँ पे 5 से 40 को कट कर सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 40 को। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 45। सिंप्लीफिकेशन में आपने इसे पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। सो F इक्वल टू 9 8 जा, अब हम यहाँ पे सिंपल 9 और 8 दोनों न्यूमरेटर प्लेस में है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है साथ में। 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, 72 प्लस 32। ओके, इसे हम ऐड ऑन करके आगे लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 + 2 4, 7 3 10 104 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Find the average of 4 quantities P, Q, R and S if A is equal to 6 and the numbers are P, Q, R and S। तो P की वैल्यू दी गई है 3, ये एवरेज की वैल्यू 6 है, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 5, R की वैल्यू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ S, तो हमें S की वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर। अगर हम एवरेज के फॉर्मूले को देखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर हमारे पास 4 है। P Q R S, P Q R और S जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और एवरेज हमें दिया हुआ है यहाँ पे 6। तो एवरेज की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ एवरेज है इक्वल टू के इस साइड पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर मीन्स 3, सम ऑफ ऑल नंबर मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे P Q R और प्लस S अपॉन 4। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, वापस हम लिखेंगे एवरेज की वैल्यू में दी गई है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 इक्वल टू, अब यहाँ P Q R S की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 7 प्लस S हमें फाइंड करना है वो, और टोटल नंबर है 4। ओके, फिर फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ 6 के साथ हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, तो 24 हो जाएगा ये, 6 4 जा 24। और यहाँ पे 3 5 7, 7 + 3 10 and 5 15, तो इसको हम क्या लिखेंगे 15 प्लस S। और यहाँ पे डिनोमीटर में कुछ नहीं होगा क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ हो चुका है, जिससे 6 4 जा 24। अब S की वैल्यू में फाइंड करनी है तो 15 को इस साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S इक्वल टू 24 माइनस 15, दैट इज S इक्वल टू 24 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ओके, तो S की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, फाइंड T, इसमें हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ T इक्वल टू 2A माइनस B, A इक्वल टू 7 एंड B इक्वल टू 3, तो A और B की वैल्यू हमें दी है, सिंपल हम इसे पुट करेंगे और T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो T इक्वल टू 2A माइनस B हमने यहाँ नोट कर लिया, फिर T इक्वल टू 2A मीन्स ये है 2 इंटू A, 2 मल्टीप्लाई विथ A, तो 2 इंटू A, तो 2 इंटू
ए की वैल्यू 7 दी है तो 7, 2 इंटू 7 माइनस बी की वैल्यू 3 दी है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर 2 7 जा कितना होता है 14, 14 माइनस 3 है -3, 14 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। टी की वैल्यू 11 है। दैट्स फाइनल। तो यहाँ पे 15 समाप्त होता है। थैंक यू।